50 और 40% ऑफ सैलरी। नोट किया? यस मैम। Yes, ओके ma'am. ओके। अब सुनिए, आपका जो था कि फर्स्ट पॉइंट दैट इनकम इज कंप्लीटली सैलरीज में, जो बेसिक सैलरी थी। अगर ये कहा गया है कि एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मिस्टर ए इज 20,000 रुपीज पर मंथ, तो यू आर नॉट सपोज टू ऐड इट। आप उसको ऐड नहीं करोगे बिकॉज दिस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आपने उसकी कहीं एंट्री ही नहीं की क्वेश्चन में। नाउ थर्ड थिंग, you should add house rent allowance, but there is an exemption limit. उसमें एक exemption limit है. And what is this exemption limit? Exemption limit is actually received or rent paid in excess of 10% of salary, or 50 or 40% of salary, whichever is lower, it will be the part of income from salaries. First, actually received. What you are actually receiving from the company as a government employee or as the private sector employee is the actually received rent. 10% of salary. Mind it very properly. This is the most important. Rent paid. That means what rent you are paying to your landlord in excess of 10% of salary. And what is the 10% of your salary? Deduct the rent paid, what you are paying to landlord, from the 10% of your salary. And the third is 50 and 40% of salary. If you are a resident, if you are a citizen of any metro city like Delhi, Calcutta, Mumbai, and Chennai, then 50% of salary. And if you are citizen of any other city, that means the 40% of salary you should calculate. Mind it, Bangalore is not a metro city. Bangalore is not a metro city. I am repeating. Only Delhi, Calcutta, Mumbai, and Chennai are the metro cities. Bangalore is not considered. Any other city is not considered as the metro city still, because as much high from the any other city. It's not about what is looking in front of the public people or the public. The basic reality is the salary, the income, the pocket income of the people are much higher of Delhi, Calcutta, Mumbai, Chennai than any other city. So, first thing is the actual rent received. Second, rent paid in excess of 10% of salary. And third thing is a 50 or 40% of salary. Then what is the house rent allowance? House rent allowance क्या होता है exactly? And rent free accommodation क्या होता है? ध्यान से सुनिए, rent free accommodation is the perquisites. Perquisites in short, you used to call as perks. आप लोगों ने salary में सुना होगा कि she is saying or he is saying that I am receiving this amount as a perk in my salary. सुना है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके तो पर्क्स का, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में पर्क्स कहते थे, और रेंट फ्री अकोमोडेशन, द कार फैसिलिटी, बोथ आर द परक्विजिट्स। ये आपको फैसिलिटी मिलती है। जब भी कोई फैसिलिटी की बात होती है तो फैसिलिटी फुल्ली टैक्सेबल होती है। जब भी किसी अलाउंस की बात होती है तो उसमें एक एग्जेम्पशन लिमिट होती है। अगर लिखा है कि मिस्टर ए इज रिसीविंग दिस अमाउंट एज द हाउस रेंट फैसिलिटी, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि मिस्टर ए को 5,000 रुपए एज अ हाउस रेंट फैसिलिटी मिल रहा है, तो 5,000 to 12 एग्जैक्टली आप उसे सैलरी में ऐड कर दोगे। बट अगर क्वेश्चन में ये लिखा है मिस्टर ए इज रिसीविंग हाउस रेंट अलाउंस, नॉट द परक्विजिट्स, नॉट द फैसिलिटी, वर्ड इज द अलाउंस। अलाउंस मीन्स he is this amount is sanctioned by the government of India. That means um, he deserves this. Allowance means कि he deserves. Okay, one thing, ध्यान से सुनिए, one thing, ये आप कॉर्पोरेट लॉ में भी पढ़ेंगे, अभी कंपेंसेशन लॉ में। ये बच्चे इतना लेट क्यों एंटर करते हैं, समझ में ही क्या आता होगा जो चीजें स्किप हो गई हैं। यस, फर्स्ट थिंग इज द क्लेम। क्लेम मीन्स कि आप कार चला रहे हैं और आपने किसी को टच कर दिया, किसी बाइक वाले को टच कर दिया। ही इज क्लेमिंग वन थिंग कि मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। सेकेंड थिंग, व्हाट यू कंसिडर, तुम्हें इतनी सी चोट लगी, 1,00,000 रुपए नहीं, 10 रुपए में काम हो जाएगा। व्हाट यू कंसिडर, 10 रुपए।
What you actually paying is the sanction amount. 10 रुपए नहीं, मेरे पास 8 रुपए, लीजिए 8 रुपए जाके खुद ही आप अपनी फर्स्ट एड करा लीजिए, ये है सैंक्शन. When you write an application to the principal of the college, आपने प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज को एक एप्लीकेशन लिखी, मुझे असाइनमेंट में इतने नंबर चाहिए, कुछ बच्चों ने लिखी भी होगी, कुछ बच्चे राइट. Yes, ma'am. नहीं पता था। नो मैम, नहीं पता इसके बारे में. ओके, नो मैम, इसके बारे में नहीं पता। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, नहीं पता है तो, लेकिन वैसे पता होना चाहिए था. मैम आपने एप्लीकेशन, हाँ जी बोलिए. कॉलेज खुलने का कुछ ऑर्डर है मैम? क्या कॉलेज खुलने का कॉलेज खोलने का क्या? कुछ नोटिस आया हो? आपको लगता है हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं क्लास में? पूछ रहा था मैम, बस वैसे में तो। नहीं, हम क्लास में डिस्कस क्या कर रहे हैं और आउट ऑफ द क्लास आप पूछ क्या रहे हैं? आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं सहरावत? आपको कैंपेनिंग करनी है ऑनलाइन, तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो राइट? जेजेपी मैम। एबीवीपी को राइट? और तुम्हें एबीवीपी की कैंपेनिंग भी करनी है ग्रुप में राइट? डोंट टेल मी कि तुम नहीं करते हो. यस सर नो? जेजेपी मैम, तो ये जेजेपी। अपना पॉलिटिकल दिमाग क्लास में बंद रखिए, इससे पहले कि मैं आपको क्लास से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूं. क्लियर है? क्लियर है? क्या बता रही थी मैं आपको? क्लेम राइट. फर्स्ट थिंग इज द क्लेम. आपने एक एप्लीकेशन लिखी प्रिंसिपल सर को कि सर मुझे असाइनमेंट्स में ज्यादा मार्क्स चाहिए, मेरे मार्क्स कम है, या मुझे कॉलेज में ये फैसिलिटी चाहिए, या मुझे ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई भी फैसिलिटी चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, कोई भी अपनी एप्लीकेशन लिखी, या फिर मुझे ये फिक्स कंसेशन चाहिए, आई बिलोंग्स टू SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी, मैं इन चारों में से किसी कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, और द माइनॉरिटी, आई एम अ गर्ल एंड आई नीड 1% रिलैक्सेशन इन द परसेंटेज, कुछ भी आपने एप्लीकेशन लिखा, दिस इज जस्ट योर क्लेम. ये आपके दिमाग की उपज है, आपने सोचा कि मुझे ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मैं कॉलेज में आई हूँ या आया हूँ तो. उसके बाद फर्स्ट थिंग, या तो प्रिंसिपल सर आपकी एप्लीकेशन को फाड़ के फेंक देंगे, ही इज नॉट कंसिडर्ड, he will not consider your application. और second thing, he may or he will think कि yes it should be considered. ये point ऐसा है कि consider होना चाहिए. बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए कॉलेज में, बच्चा ये कह रहा है कि एनुअल फेस्ट होना चाहिए, प्रॉम्प्ट नाइट होनी चाहिए कॉलेज में, बिकॉज एक साल में बच्चों को ब्रेक चाहिए होता है, कहीं ना कहीं कॉलेज के बच्चों की डिमांड होती है. या फिर बच्चा ये कह रहा है कि मेरे कॉमर्स डिपार्टमेंट के फेस्ट में 2 दिन का फेस्ट नहीं होना चाहिए, 3 दिन का होना चाहिए, बिकॉज आई हैव दीज एक्टिविटीज, मुझे ये एक्टिविटीज कॉलेज में करनी है एंड सो ऑन. तो प्रिंसिपल सर उसकी बात को अगर कंसिडर करते हैं तो ये होता है कंसिडरेशन. एंड थर्ड इज होता है सैंक्शन, कि आपको सैंक्शन क्या किया. फॉर एग्जाम्पल कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी जो है संघर्ष, वो 5 लाख रुपए डिमांड कर रही है कि मैं 5 लाख रुपए इस साल की प्रैक्टिस के लिए चाहिए, हमने कुल एंड सो ऑन ब्ला ब्ला, तो 5 लाख रुपए चाहिए, तो प्रिंसिपल सर ने 5 लाख की एप्लीकेशन पढ़ी, उन्होंने दिए सिर्फ 2 लाख रुपए, तो वो होता है सैंक्शन अमाउंट. तो इनकम टैक्स में हाउस रेंट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, और हाउस रेंट अलाउंस का क्या? हाउस रेंट अलाउंस इज द सैंक्शनड अमाउंट वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, जितना वो डिजर्व करता है. जनरली लोग ना, आप लोग अभी कॉलेज में हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, हर जगह एक ही वर्ड मत लिखा करिए, पढ़ा मत करिए कि डिजर्व डिजर्व, ही डिजर्व, शी डिजर्व, डिजर्व डिजर्व. use the word sanctions, the exact that you are in graduation, आप graduation complete करके you are moving towards the master's degree, तो use the word sanction, that means this he deserves, ये होना ही चाहिए, ये है. The facility amount doesn't deserve the designation but your employer is paying to you. facility का मतलब होता है आपकी designation, आप एक जूनियर मैनेजर हैं, ये आपकी जो डेजिग्नेशन है वो इतना डिजर्व सैंक्शन हो, तो उसको आपको एज अ परक्विसिट्स, एज अ पर्क्स दिए जाते हैं. तो अगर एक आपसे बात कर रहा है, नॉर्मल लाइफ की बात बता रही हूँ क्लास से हटके, अगर आपसे एक पर्सन ये बात करता है और ये कहता है कि कार फैसिलिटी, पेट्रोल फैसिलिटी, ये सारी चीजें जो है ना, ये मेरी सैलरी में इंक्लूडेड है, तो इट्स ऑल राइट. और एक दूसरा पर्सन कहता है मुझे कार बिल्स, सॉरी पेट्रोल बिल्स या रेस्टोरेंट्स बिल्स, ये सारी चीजें मेरी पर्क्स, मेरी कंपनी मुझे देती है और वो मुझे पे करना पड़ेगा, सॉरी शो करना पड़ेगा.
तो दोनों को ही मिल रहा है, लेकिन जिसको शो बिल नहीं करना पड़ रहा है वो ज्यादा बड़ी डेजिग्नेशन पर है, और जिसको शो करना पड़ रहा है वो छोटी डेजिग्नेशन पर है, क्योंकि उसकी डेजिग्नेशन डिजर्व नहीं करती, लेकिन उसका एम्प्लॉयर उसके ऊपर मेहरबान होके एज अ सिंपैथी उसे वो दे रहा है। तो पर्क्स इज नथिंग इन रियलिटी। एक ब्रिलियंट आदमी के दिमाग से देखा जाए तो सिंपैथी है सिर्फ पर्क्स, कोई खुश होने की बात नहीं है, ऑब्वियस नहीं है, वो अलग से दी जा रही है। तो हाउस रेंट फैसिलिटी अगर है तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर 5,000 रुपए आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिए हैं तो 5,000 रुपए पर ही टैक्स लगेगा। 25,000 rupees was your basic salary in the last question. तो 25,000 into 12 plus DNS allowance 5,000 into 12 plus bonus 1,000 into 12 plus house rent facility 6,000 rupees into 12, वो आपका सैलरी का पार्ट होगा, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल और सैलरी में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा है हाउस रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस में आप पहली चीज क्या कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिए। एक्चुअली रेंट रिसीव्ड लिखिए, पूरा वर्ड लिखिएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जो आपको रेंट अपने ओनर से मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंस में, उसमें से आप माइनस करेंगे सबसे पहली चीज, अगेन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो मिल रहा है वही पॉइंट, आपने जो रेंट पे किया है आपकी 10% सैलरी से ज्यादा, देन नाउ दिस इज द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द सैलरी। अब आपकी सैलरी क्या है, कुछ क्वेश्चंस में आप बुक में देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, डोंट बी कंफ्यूज, बहुत ध्यान से सुनिए। 10% ऑफ सैलरी क्या होगा, 10% ऑफ सैलरी में दैट मीन्स 10%, 10 upon 100 मल्टीप्लाई बाय 25,000 इंटू 12, 25,000 इंटू 12 कितना आएगा, 3 लाख। 3 लाख का जो 10% है वो आपको कैलकुलेट करना है 10% ऑफ सैलरी में। बुक में गिरीश आहूजा में एंड सिंघानिया में अलग अलग क्वेश्चंस आप देखेंगे और सारे क्वेश्चंस में अलग अलग एंट्री होगी। वो एंट्री क्या होती है, एंट्री ये होती है कि सैलरी मीन्स सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस, तीनों चीजें ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका सैलरी होगा, और 10% आप उसका कैलकुलेट करोगे। क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस की एंट्री आपके क्वेश्चन में 5th नंबर पे दी है और हाउस रेंट अलाउंस की एंट्री 6th नंबर पे दी है, जो मैंने आपको कल बताया कि जब भी मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट करवा रही हूँ आपको लिखवा रही हूँ तो उसकी ड्राफ्टिंग 1 by 1 करिए, एक लाइन के बाद एक लाइन का गैप दीजिए, मतलब कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन में लिखो, सेम लाइन में नहीं लिखना है। उसका यही मतलब था कि जो एंट्रीज मैं बता रही हूँ, अगर 5th नंबर पर इंटरटेनमेंट अलाउंस है तो इंटरटेनमेंट अलाउंस भी पार्ट होगा सैलरी का फॉर 10% ऑफ सैलरी। क्लियर हुआ? यस मैम। तो हाउस रेंट अलाउंस की एंट्री जिस नंबर पर है उससे पहले जितने भी अलाउंसेस हैं, माइंड इट वेरी प्रॉपरली, सिर्फ अलाउंसेस हैं 4, 5 या 6, वो सारे पार्ट बनेंगे सैलरी का। लेकिन अगर उससे पहले फैसिलिटीज हैं तो वो आपके अलाउंसेस का पार्ट, सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। क्लियर हुआ? जैसे क्वेश्चन में लिखा है बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी। अच्छा, इसको ध्यान में रखिएगा एक पैटर्न को, इनकम फ्रॉम सैलरीज में स्टार्टिंग का जो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द कंप्लीट इनकम फ्रॉम सैलरीज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज, उसमें स्टार्टिंग फर्स्ट होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस एडवांस सैलरी, इसके बाद ही कोई नई एंट्री होती है। ठीक है, यस मैम। अब फटाफट लिखो इसको फटाफट लिखो, जो आपने फर्स्ट पेज ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया था पहले दिन इनकम फ्रॉम सैलरीज में, बेसिक सैलरी प्लस सेकंड पॉइंट लिखो डियरनेस अलाउंस प्लस थर्ड पॉइंट लिखो, प्लस का साइन लगाते चलना, प्लस थर्ड पॉइंट लिखो बोनस, प्लस फोर्थ पॉइंट लिखो कमीशन, प्लस 5th पॉइंट लिखो डिस्गस्टिंग। मैम कोई गाना बजाए। कोई नचनिए लोग भी होते हैं ना, इनको 24 घंटा नाचना और डांस ही पसंद होता है। ज्यादातर जनरेशन का यही हाल है कि उनके अंदर टैलेंट के नाम पे सिर्फ नचनिया और गवैया ही बनना है। साइंटिस्ट बनने में तो मेहनत लगती है, नचनिया में तो मेहनत नहीं लगती। यस मैम, रील्स रील्स बना रहे हैं।
राइट, नाचने में मेहनत नहीं लगती, गाने में मेहनत नहीं लगती, साइंटिस्ट बनने में मेहनत लगती है, सीए बनने में मेहनत लगती है, तो नचनिए गवैये होते हैं फैजू। हर जगह होते हैं। मैं पिछले 10 साल से डांस सोसाइटी चला रही हूँ डीयू की, बहुत अच्छे से पता है। खैर आगे बढ़िए, मैं क्या बता रही थी आपको। मैम बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस प्लस या कमीशन तक बताया। सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी कि जब सैलरी आपको ड्यू बेसिस पर नहीं मिल रही है, एडवांस बेसिस पर मिल रही है। जैसे आपको कहा गया कि हिज सैलरी इज 25,000 रुपीज पर मंथ एंड आपने डायरेक्टली 25,000 इंटू 12 कर दिया बिना सोचे समझे, बिकॉज 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स हैं और आपने उसकी एंट्री कर दी। नेक्स्ट क्या होता है, आपने 13 मंथ सोचा ही नहीं, क्योंकि आपके इंडिया में जो हमारा सर्कल है, हम यही देख रहे हैं कि एक साल में 12 महीने की सैलरी मिलती है, राइट। यस मैम। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में कॉमा और फुल स्टॉप का ध्यान बहुत रखिएगा, मैं फर्स्ट डे से कह रही हूँ। अगर उसमें लिखा है कॉमा लगा के नॉट ऑन ड्यू बेसिस और ऑन द एडवांस बेसिस, तो क्वेश्चन में अलग से ये नहीं लिखा हो कि एडवांस सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ। इस अंडरस्टूड की एडवांस सैलरी की 25,000 रुपए आपको एंट्री करनी है और आपको उस क्वेश्चन में ये पता है कि उसने 25,000 रुपीज हिडन फॉर्म में लिखा है, एक अलग रूप में उसने उसको कमीशन प्लस एडवांस सैलरी प्लस हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस में 10% ऑफ सैलरी आप लोग एज टू माई स्टूडेंट्स सिर्फ ऐड करोगे द बेसिक सैलरी एंड मेक अ नोट दैट वी आर कंसिडरिंग, mind it, we are considering only basic salary as the salary comma not the entertainment allowance, not the bonus, the commission, the advance salary। ये 4 पॉइंट्स आप लिखोगे, क्लियर हुआ। यस मैम। चलो फटाफट क्वेश्चन नोट करो फ्रेश पेज पे, और उस पेज के साइड वाला पेज भी ब्लैंक होना चाहिए, उस क्वेश्चन पे लिखिए। मतलब एक पेज पे आप क्वेश्चन करोगे, एक पे वर्किंग नोट करोगे। टी शेप अकाउंट बनाओ और थर्ड पेज पे आप क्वेश्चन नोट कर रहे हो, 3 पेजेस एक साथ रखो। फर्स्ट, अगर एग्जाम में आपके 15 नंबर का क्वेश्चन है और 1 नंबर की एंट्री, तो आधे नंबर आपको वर्किंग के मिलेंगे, आधे नंबर आपको फेयर के मिलेंगे। अगर आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो अगर वर्किंग कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, चीटिंग नहीं की, तो सैलरी के क्वेश्चन में आपको फेल कर देते हैं। माइंड इट, फेल कर देते हैं, फिर एक भी क्वेश्चन की एंट्री, एक भी एंट्री के नंबर नहीं मिलते हैं। अब नोट करिए, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लाइन में लिखो कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब नेक्स्ट लाइन में सेंटर में लिखो ऑफ मिस्टर ए, सेंटर में, नेक्स्ट लाइन में ऑफ मिस्टर ए इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो जो भी नाम क्वेश्चन में दिया होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, लिखिए फॉर द टू 2020-21 कॉमा, एंड फोर्थ लाइन में लिखो इन द असेसमेंट ईयर 2021-22 फुल स्टॉप। क्लियर। Yes, ma'am. अब यस ये मैम। आपको स्टार्टिंग में हेडिंग लिखनी है। अब उसके बाद टी शेप अकाउंट बनाओ, इसको लिखने के बाद इसके नीचे टी शेप अकाउंट बनाओ। लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट के साथ ब्रैकेट में लिखो रुपीज। अब सेम वर्किंग्स जो है, वर्किंग्स के भी वर्किंग्स के लिए भी सिर्फ आपको एक वर्ड नोट करना है ऊपर, वर्किंग, और सेम फॉर्मेट बनेगा, सेम फॉर्मेट, दैट कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ मिस्टर ए फॉर द प्रीवियस ईयर एंड इन द असेसमेंट। बनाया सारा हिसाब किताब। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट लिखिए। अब क्वेश्चन नोट करो थर्ड पेज पे। इनकम फ्रॉम बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए is 1 lakh rupees per month।
on the advance basis. Full stop. Full stop. ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बच्चों ने नोट किया? यस मैम, नोट हो गया। Yes. Yes, ma'am. गर्ल्स आप लोगों की वॉइस कहाँ है भाई? बॉयज अपना म्यूट रखिए, जरा लड़कियों को बोलने दीजिएगा थोड़ी देर, कोई लड़का नहीं बोलेगा। स्पेशली 447, 229, 621, 319, 518 आप लोग म्यूट रखिए, बाकी क्लास आप ही लोग नहीं बोलते हैं, बाकी गूंगे नहीं है, इन्हें बोलने दीजिएगा। आप लोग अपना लिखिए, आई ट्रस्ट। नेक्स्ट, ऑन द एडवांस बेसिस। अब इतना पढ़ने के बाद फुल स्टॉप है, आप लोग रुक जाएंगे। और फुल स्टॉप का मतलब आप इस एंट्री को सॉल्व करिए इनकम टैक्स में। ओके, अब फर्स्ट जो फेयर है उसमें लिखो फर्स्ट बेसिक सैलरी, फर्स्ट सीरियल नंबर बेसिक सैलरी, और अमाउंट के कॉलम में लिखिए 12 लाख। लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सेकंड पॉइंट, बेसिक सैलरी सेम, नीट एंड क्लीन। सीरियल नंबर 1 बेसिक सैलरी 1 lakhs into 12, ये मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू शो इन द वर्किंग्स। 1 lakhs into 12 lakhs, वहां पर 12 lakhs लिखिए, और यहाँ पर सिर्फ 12 lakhs आपको एंट्री करनी। अब क्वेश्चन में लिखिए सेकंड पॉइंट, डियरनेस अलाउंस is 5% of basic salary as part of employment benefit, amounts rupees 3 lakhs, full stop. Clear? कि जो डीएनएस अलाउंस है वो 5% पार्ट है बेसिक सैलरी का एज द रिटायरमेंट बेनिफिट और द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एंड बाकी जो है टोटल अमाउंट जो है वो उसको 3 लाख रुपए हम डीएनएस अलाउंस कंसिडर कर रहे हैं या मान रहे हैं या उसको मिला है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस पे टैक्स कितना अमाउंट जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरीज का पार्ट होगा। Dearness allowance is a part of salary only if it is a part of retirement benefit and the employment benefit. तो जो बेसिक सैलरी है आपका 1 लाख रुपए, सारे बच्चे म्यूट ओपन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, किसी को डाउट हो तो। ओके, इसमें सिर्फ डियरनेस अलाउंस का रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट जो है सिर्फ 5% है बेसिक सैलरी का, और एक्चुअल में 3 लाख की बात हो रही है, तो कितना आप इसमें ऐड करेंगे? ओनली 5%। क्लियर? यस मैम। Ma'am. ओनली 5% ऑफ 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का 5% कैलकुलेट करो। 5000। ये वर्किंग, एक सेकेंड, अब आप वर्किंग्स में जाइए और वर्किंग में लिखिए डियरनेस अलाउंस डीए कैपिटल्स में D.A, पूरा डियरनेस अलाउंस लिखने की जरूरत नहीं है, और उसके नीचे वाली लाइन में लिखिए 5% ऑफ 1 लाख ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5000, और अमाउंट के कॉलम में एंट्री करो 5000, और यहाँ पर्टिकुलर्स के कॉलम में नीचे एंट्री करिए, लिखिए नॉट कंसिडर्ड 3 lakhs because only 5% of basic salary is a part of retirement benefit, full stop. ठीक? Okay, ma'am. देखिए डियरनेस अलाउंस अमाउंट में एंट्री करिए 5000, दैट्स इट। मैम बट ये 5000 का 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। नहीं बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि 5 डियरनेस अलाउंस इज 5% ऑफ बेसिक सैलरी, ऑफ बेसिक सैलरी, दैट्स इट। इतना ही लिखवाया मैंने, आगे कोई और वर्ड लिखवाया है? एक बार रिपीट करिए। Ma'am, you already. ऑफ एम्प्लॉयमेंट वन बेनिफिट। बाय वन एक एक बच्चा बोलो। 319 आप बताइए। Ma'am, इसके आगे आपने और लिखवाया है as a part of employment.
benefit. हाँ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, हाँ वो तो है ही है बस। यस, कौन से बच्चे ने डाउट पूछा था? द गर्ल हु सेड कि मैम इसको मैंने 12 पूछा था। नहीं, इस पे अगर लिखा होता ना पर मंथ बेसिस, एनुअल बेसिस, तो नहीं, इस पे सिर्फ लिखा है कि टोटल डियरनेस अलाउंस जो है वो बेसिक सैलरी का 5% है। तो सॉरी, माय मिस्टेक, आप 12 लाख का 5% कैलकुलेट करोगे, यू आर राइट। यही मैम, यही से मल्टीप्लाई नहीं करोगे 5,000 को, जो आपका 12 लाख है उसका 5% कैलकुलेट करोगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 लाख Yes. का 5% कैलकुलेट करोगे एज ए डीए और वो ऐड कर दोगे, ठीक? Yes, ma'am. यस मैम, ओके। क्या अमाउंट आया सारे बच्चों का? 60,000. 60,000. 60,000. 60,000. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए, कॉमा लगाइए, नॉट कॉमा सॉरी, फुल स्टॉप लगाइए और थर्ड लाइन में लिखिए बोनस ऑफ मिस्टर ए is 2,000 rupees per month, फुल स्टॉप। इसकी वर्किंग में शो कर दिए 2012 और 24,000 और फेयर में लिख लीजिए 24,000। क्वेश्चन में नोट करिए नेक्स्ट, कमीशन, ही इज रिसीविंग कमीशन मिस्टर ए, फुल स्टॉप के बाद मिस्टर ए इज रिसीविंग 1% कमीशन on sales, comma, sales for the previous year is 10 lakhs, comma, amounts rupees 95,000 he received, full stop। अब वो कह रहा है कि कमीशन ऑन सेल्स जो है वो 1% है 10 लाख रुपए का, और उसको मिले हैं कमीशन पे, कमीशन टोटल 95,000 रुपीज। 10 लाख का 1% कितना हो गया है? Ma'am, 10,000. 10,000. मिला है, लेकिन उसने लिखा है कि कमीशन उसको 95,000 रुपीज रिसीव हुआ है, उसके बनते 10,000 रुपए थे, लेकिन उस कंपनी में जॉब करने की वजह से किसी भी बेसिस पर उसको टोटल 95,000 रिसीव हुए हैं। तो आप 95,000 रुपीज ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज में, क्लियर? Yes, Okay, ma'am. ma'am. अब वर्किंग सारी शो कर दो, जो भी हिसाब किताब है वर्किंग्स में, और फेयर में सिर्फ नोट करो 95,000 विदाउट एनी रीजन, एंड रीजन आपको मेंशन करना है वर्किंग्स में। अब नेक्स्ट लिखिए। Excuse me, मैम। हाँ जी पूछिए। मैम वर्किंग में क्या रीजन शो करे मैम? 95,000 क्यों लिख रहे हैं मैम? Because we always add salary on the received basis. ओके मैम। अब Like ऐसे लिखते हैं ना that he has received 95,000, that is why no ऐसे no 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 no. Income under the head income from salaries is always taxable on the received basis. एग्जैक्ट वर्ड ये लिखना है। वैसे आप रिसीव्ड एक वर्ड भी लिख दोगे तो टीचर को समझ में आ जाता है, ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है, शॉर्ट में सब समझ में। नेक्स्ट लिखिए, क्या बता रही थी मैं, या नेक्स्ट लिखिए एडवांस सैलरी। इसकी डायरेक्टली एंट्री करो उसमें, फेयर में 1 लाख रुपीज, एडवांस सैलरी 1 लाख रुपीज, और वर्किंग में लिखो जो लाइन क्वेश्चन में मैंने लिखवाई है ना, sorry I forget the exact word what I said in the first line, that he is received on the, he is not receiving on the due basis or in advance basis, whatever word जो मैंने आपको लिखा है एग्जैक्ट वर्ड वो आप रीजन में लिख देंगे, ठीक है? और अमाउंट नहीं लिखेंगे वर्किंग में, सिर्फ लिख दो एड एडवांस सैलरी बिकॉज इट इज नॉट ऑन ड्यू बेसिस और इट इज इन एडवांस बेसिस और ही रिसीव्ड व्हाटएवर, जो भी रीजन है, ठीक है? ठीक है, Yes, मैम। ए एक सेकेंड होल्ड करो। Right, okay. Mr. A is working in Calcutta, comma, and receiving house rent allowance
4,000 rupees per month and rent paid 2,000 rupees per month. ₹4,000 उसको मिल रहे हैं, 2,000 वो पे कर रहा है. He's receiving house rent allowance 4,000 rupees per month and he's paying rent 2,000 rupees per month. Yes, full stop. House rent allowance, then children education allowance. And एक चीज और लिखो आगे फुल स्टॉप के बाद, ये कल के लिए. नेक्स्ट लिख लो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹200 per month. Calculate the salary. ठीक है. हाँ Yes, एक ma'am. सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, 1 मिनट का टाइम जरा मुझे दो. हाँ ठीक है, 4,000 2,000 ना, ठीक. ओके लिखिए. हाउस रेंट अलाउंस में मनीष यादव, ये एंट्री लेने का टाइम है क्लास में 2:15 बजे. एनीवेज अच्छा लिखिए सारे बच्चे. 229 447 621 आप लोग पढ़िए लिखिए. अब नेक्स्ट जहां वर्किंग है ना वहां लिखिए अच्छे से. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड AR. आपको ARR वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ एक्चुअल रेंट उसका मतलब रिसीव्ड ही होता है. AR माइनस AR, जैसे बता रही हूँ ऐसे लिखना है शॉर्ट में, माइनस AR स्लैश रेंट पेड minus 10%. That's it. Rent paid minus 10% slash 50%. That's it. अब इस क्वेश्चन में वो आपका मेट्रो सिटी में रह रहा है, दैट मीन्स 50 और 40% ऑफ सैलरी. अगर वो मेट्रो सिटी में है तो 50% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 40%. वो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई एंड चेन्नई, इन चारों में से किसी एक में रह रहा है जहां भी मैंने लिखवाया है. तो 50% ऑफ सैलरी आप कैलकुलेट करेंगे और एक्चुअल रेंट रिसीव. तो व्हाट इज द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, उसको एक्चुअल में रेंट कितना रिसीव कर रहा है उसके नीचे लिखो 4,000 into 12 माइनस अगेन 4,000 into 12 स्लैश रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी. वो रेंट पे कितना कर रहा है 2,000 रुपीज. तो 2,000 into 12 माइनस 10% मैम ऑफ प्लीज सैलरी. रिपीट. जितना, एक मिनट डोंट इंटरप्ट, मैं दोबारा लिखवाऊंगी. 10% ऑफ सैलरी 10/100 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज योर सैलरी. सैलरी इज योर 12 लाख रुपीज स्लैश 50% ऑफ सैलरी 50% ऑफ 12 लाख. क्लियर हुआ. रुक जाओ, मैं आप लोगों को ना एक जरा स्क्रीनशॉट शेयर करके भेज ही देती हूँ लिख के. होल्ड करो. कितने बच्चों को क्लियर नहीं हुआ पहले ये बताओ. क्या प्रश्न क्लियर हो ही गया, बताइए. नहीं हुआ मैम. No, Sir, ma'am, नहीं it's हुआ not मैम. clear. अच्छा रुक जाइए रुक जाइए. बड़ा मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना ऑनलाइन, वो भी ऐसे सब्जेक्ट्स. मैम अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो साइड में वाइट स्क्रीन का एक ऑप्शन होगा, उससे कर सकते हो. अभी तो मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, सिर्फ इनफैक्ट आज ही मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, लेकिन हाँ लैपटॉप पे होंगी तो मैं बताना एक बार, मैं कर देती हूँ उससे. एक सेकंड रुक जाओ, मैं कुछ सॉल्व कर रही हूँ. क्या एक्चुअल रेंट टू 12 माइनस ₹1,00,000 सैलरी ना. Yes, ma'am. हम्म.
चेक करो सारे बच्चे। मिला है स्क्रीनशॉट? Yes, अरे ma'am. बोलो Yes, ना। ma'am. यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, अब आपको ऐसे लिखना है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड माइनस एक्चुअल रेंट स्लैश रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी और 50 और 40% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है 4000 इन 12 माइनस अगेन एक्चुअल रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट ये पे कर रहा है 2000 रुपए, तो 2000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ 10 lakhs एंड 50% ऑफ 12 lakhs। यही जो 12 लाख रुपए हैं, ये आपके 12 लाख चेंज हो जाते हैं अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करते, तो वो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले आप इसको सॉल्व करो। 4000 इन 12 कितना आ जाएगा? 48,000। ठीक है, लिखिए। हाँ ठीक है, उसके नीचे लिखिए 48,000 माइनस 24,000। 24,000। या ठीक है 24,000 माइनस 10% ऑफ 12 लाख कितना आ जाएगा? 1,20,000। 1,20,000। एक सेकेंड 12 लाख का 10% क्या आ जाएगा? 1,20,000। 1,20,000. 1,20,000। ओह सॉरी या ये तो राइट। माइनस में आ एक सेकेंड भाई। मैम एक्सक्यूज मी मैम। नॉट एक्सक्यूज्ड, प्लीज वेट स्टूडेंट्स। कितनी जल्दी में रहते हो भाई? मैंने क्वेश्चन को बुक में से नहीं लिया, बनाया है साथ के साथ। इनकम टैक्स के क्वेश्चन बुक्स में से नहीं हो पाते हैं। 1,20,000 ठीक है, और 50% ऑफ 12 लाख कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा, राइट? यस मैम। माइनस 48,000 स्लैश 24,000 माइनस 1,20,000 कितना आ जाएगा माइनस में? माइनस 96,000। माइनस 96। आप उसको लिखिए माइनस 96,000 ब्रैकेट में, और फिर लिखिए 0 स्लैश 6 lakhs। ठीक है, Yes, अब ma'am. देखो 48,000 मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज ही देती हूँ, स्लैश 48,000 स्लैश 0 स्लैश 6 lakhs। सबसे छोटा है 0, राइट? यस मैम। यस मैम। 48,000 माइनस 0 और आपका आ जाएगा 48,000। ये हाउस रेंट लाऊं। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। चेक करिए स्क्रीनशॉट जरा, देखो। देखा? यस मैम आ गया है। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम आ गया। समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब देखिए माइनस 96 था, आपने उस 96 को 0 क्यों लिखा? या तो आपको सैलरी मिलती है या आपको सैलरी नहीं मिलती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं जॉब करें और 1 महीने बाद आप उसको पैसे दे के आए, राइट? तो माइनस 96,000 का मतलब क्या होता है, या माइनस फिगर जब भी इनकम फ्रॉम सैलरीज में या इनकम टैक्स में आती है तो उसको हम 0 क्यों बना देते हैं? या तो आपको इनकम होती है या आपको इनकम नहीं होती है। जो लॉस अगर आपको होता है तो वो लॉस सिर्फ आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन जो आपका हेड है उसमें कंसिडर होता है, नॉट प्रोफेशन। ओनली बिजनेस जो आपका हेड है उसमें कंसिडर होता है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हॉर्स रेस या लॉटरीज जो होती है उसमें कंसिडर नहीं होता है। दे क्लेम एक एसएससी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो आपका 5th या 7th चैप्टर है उसमें ये क्लेम करेगा मिस्टर ए कि मेरी इनकम फ्रॉम सैलरीज ये है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये है, जिसमें आप पांचों हेड्स उसके ऐड करोगे। अभी तो स्टार्टिंग है सिर्फ टैक्स की। तो उसमें आप इनकम फ्रॉम लॉटरीज में उसे लॉटरीज से इनकम होगी तो कंसिडर करोगे कि इसको 10,000 रुपए सैलरी इनकम अर्न हुई है। लेकिन वो कहेगा मैंने लॉटरी टिकट से 5,000 के खरीदे हैं
वो आप कंसिडर नहीं। in business and profession में if he said कि I invested as a land labor capital entrepreneurship is the fourth thing कि मैंने रिस्क जो है वो ऐड किया है इतना %, मेरा इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट्स थी, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें जो और मुझे इतना लॉस हुआ है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर करती है, वो सट्टेबाजी नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट शायद तुम नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे, उसकी तरह कंसीडर नहीं करती है, तो उसमें बिजनेस में आप लॉस को कंसीडर करते हो, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरीज में आप लॉस को कंसीडर नहीं करते हो। अगर माइनस में आ रहा तो जीरो है। अब इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकली मतलब सिर्फ इतना होता है कि मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा है, एज सिंपल एज दैट। मेरा कॉलेज मुझे 2 लाख सैलरी दे रहा है, बट हो सकता है मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, तो मेरा अपना बंगलो, वो 2 लाख रुपए सिर्फ मेरी पॉकेट मनी हो, राइट? ये कि हो सकता है किसी के लिए पूरी फैमिली का सर्वाइवल हो। आपका लाइफ स्टाइल क्या है? तो आप हो सकता है उतना रेंट ज्यादा पे कर रहे हो, भाई रेंट, उसका लाइफ स्टाइल कुछ अलग है, वो जितना उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेंट दे रही है, उसका एम्प्लॉयर रेंट दे रहा है, उससे ज्यादा वो रेंट पे कर रहा है, माइनस में जा रहा है, कुछ भी हो रहा है या रिसीव कर रहा है। तो माइनस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसका लाइफ स्टाइल ज्यादा है, बहुत अच्छा है, इतना सिंपल को रिलेट किया जा सकता है अपनी पढ़ाई से, जितना मैं बता सकती हूँ, इससे अच्छा मैं और इलेबोरेट नहीं कर सकती हूँ। तो माइनस को आप जीरो में कन्वर्ट कर देते हो इनकम अंडर द हेड सैलरीज में, और 48,000 जो लास्ट में आ जाएगा, इट विल बी द पार्ट ऑफ सैलरी, इट इज द टैक्सेबल अमाउंट। तो 48,000 रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाएगा और एज अ HRA ऐड होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। वर्किंग में सारा हिसाब किताब मैम जो एक भी बार और दिखेगा, बता दीजिए। एक सेकेंड, 529 529 यस मैम। व्हाट्स योर गुड नेम? मैम पलक। पलक। यू हैव वेरी स्वीट वॉइस पलक। एनीवेज, सो माइनस टर्म्स जो आपकी होती हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज में, ओनली इनकम फ्रॉम सैलरीज में, उसे आप जीरो में कन्वर्ट कर देते हो, बिकॉज यू आर नॉट सपोजिंग कि इनकम फ्रॉम सैलरीज में यू आर पेइंग इनकम टू योर एम्प्लॉयर, यू आर ओनली सपोज टू रिसीव द इनकम और नॉट रिसीविंग द इनकम। क्लियर? यस मैम, नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू मैम। ओके, तो 48,000 रुपीज जो आपका लास्ट में 48,000 रिमेन अमाउंट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। अब उसे ऐड करिए फेयर में जाके, हाउस रेंट अलाउंस 48,000 किया ऐड? यस मैम। बाकी बच्चे बताइए, ऐड किया? यस मैम Yes, कर ma'am, करते हैं। नेक्स्ट लिखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, CEA शॉर्ट फॉर्म में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। द एग्जामिनेशन लिमिट इज 100 रुपीज मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। अब मैं कल कराऊंगी, आज नहीं। कोई क्वेश्चन इसका ढूंढ लेना, कहीं बुक में होगा तो देख वेख लेना, अदरवाइज मैं करा ही दूंगी। तो हाउस रेंट अलाउंस क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप किसी भी बुक में से क्वेश्चन करें, आई प्रेफर ओनली एंड ओनली गिरीश आहूजा फॉर द ग्रेजुएशन लेवल, रेस्ट अप टू यू ऑल। एंड 12 लाख रुपीज जो है, ये आपका वेरिएशंस मिलेंगे इसमें आपको। कहीं 12 लाख को आपको लगेगा कि 10% ऑफ सैलरी, इसका बेसिक सैलरी तो सिर्फ 1 लाख रुपीज है, तो 12 लाख में इसने 18 लाख क्यों लिख रखा है? तो माइंड इट कि हाउस रेंट अलाउंस से पहले सैलरी प्लस DA प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस एडवांस सैलरी प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर है, तो वो सारी चीजें उसके वर्किंग में पार्ट हैं। आप चाहें तो हर क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो हर क्वेश्चन अलग होगा, या फिर ये एक फॉर्मूला फिट कर सकते हैं अपने दिमाग में और वर्किंग्स में लिख लो। पहले क्वेश्चन है, लिख ही लो, HR में लिखो, वी आर कंसिडरिंग 10% of salary and salary amount only 12 lakhs excluding commission, bonus, advance salary and entertainment allowance, full stop। एंड हाउस रेंट अलाउंस 48,000 एंटर कर दो। वैसे 99% क्वेश्चंस में रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट में से माइनस होता है और जो फिगर आता है वो आपका आंसर ऐड होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं।
क्लियर है? एक्चुअल रेंट माइनस एक्चुअल रेंट, रेंट पेड 50%, विच एवर इज द लीस्ट, तीनों में से जो सबसे कम होगा, इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी होता है, वो अमाउंट माइनस हो जाता है। इसमें जीरो है, विच इज लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट, कुछ अमाउंट होता जीरो की जगह हो सकता है, तो वो माइनस हो जाता और फिर जो फिगर आता है वो आपका ऐड हो जाता। ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, जस्ट होल्ड ऑन, आई एम टेकिंग अटेंडेंस। 2008, माइक ओपन रखिए सारे बच्चे। 2008, 17, 38, Yes, ma'am. 83, 70, 39 हो गया, फिर मैं लीव कर देता हूँ। 702 म्यूट करिए, 705, प्रेजेंट मैम। 711, 711, 719, म्यूट करिए 719, इसका माइक 721, खराब है, बंद करो यार। Present, ma'am. 721, 721 present. म्यूट करिए 732, प्रेजेंट मैम। म्यूट करिए 734, Present, ma'am. म्यूट करिए 763, Present, ma'am. 766, प्रेजेंट मैम। 768, प्रेजेंट मैम। 779, Present, ma'am. 793, Present, ma'am. 800, Present, ma'am. 856, म्यूट करो अपना फोन माइक्रोफोन। 866, प्रेजेंट मैम। म्यूट करो। 396, Present, ma'am. म्यूट करो। 397, म्यूट करिए। 518, Yes, ma'am. म्यूट करिए। 519, 529, पलक म्यूट करो। 555, म्यूट करो। 572, म्यूट करिए। ओके। 574, म्यूट करो। अरे कौने का माइक है, बंद कर। Excuse me, ma'am. 2439 हो गया। एक सेकेंड होल्ड करिए, बता रही हूँ। कल सब लोग अगर अपना कैमरा ऑन करके बैठिएगा, मैं देखना चाहूंगी कि एक बच्चे को, स्पेशली 595 को। Okay, ma'am. ले लिए मैंने अटेंडेंस स्क्रीनशॉट से। और ये जो इतने शोर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये आप लोगों के पेरेंट्स ही चाहते होंगे ना आप लोग पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन जाए, चमत्कार हो जाए, ऐसा होगा ना? ये सर नो, मतलब तुम लोगों ने सीरियसली थोड़ी देर के लिए म्यूट ओपन किया है, इतनी डिस्टरबेंस है। क्या लगता है आप लोगों को जो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, आईईएस बन जाते हैं, आईआरएस बन जाते हैं, तुम लोग जा सकते हैं जुडिशियल जॉब्स में, जजेस बन जाते हैं 24 की एज में, वो इतने शोर में पढ़ाई करते हैं सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे के लिए? ये सर नो, मैं आंसर पूछ रही हूँ, मैं डिस्कशन कर रही हूँ, हड़का नहीं रही हूँ।
क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है? असलियत की जिंदगी में चमत्कार नहीं होते। एंड मैं कल देखना चाहूंगी कैमरा पे सारे बच्चों को, देन आई डिसाइड किस क्लास को किस तरीके से और कितनी मेहनत से कितने